और जी क्रिकेट सीजन है तो पहला सवाल है पाकिस्तान क्रिकेट इन 2040. Dear Ganji Swag, I was sitting last night still nursing my broken TV remote after Pakistan's latest humiliation and I made the classic mistake of tuning into post-match analysis. Behold, there they were, the holy trinity of Pakistan cricket. Shahid Afridi explaining टीम को यूनिटी दिखानी चाहिए, आउटर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. कामरान अकमल कंप्लेनिंग अबाउट ड्रॉप्ड कैचेस. शोएब मलिक सेइंग यूथ को चांस देना चाहिए. सलमान बट गिविंग इंटेग्रिटी लेक्चर्स. अहमद शहजाद टॉकिंग अबाउट डिसिप्लिन. Hafiz being a technical professor demonstrating how to play hook shots, and Misbah promoting the slow at first, aggressive in the end strategy. Out of sheer frustration, I pressed the broken remote too hard. Suddenly, I was pushed into a wormhole and found myself in the year 2040. Pakistan had just lost a match to India in the World Cup. The post-match ceremony was still being hosted by Ramiz Raja and Wasim Akram. They were rushing through the formalities since they had to hurry to a cricket panel show afterwards. I flipped the channel again and landed on 11th hour with Wasim Badami. Sitting there was Fakhar Zaman passionately lecturing young players about how fitness is the key to performance. He pointed to the opener, highlighting how his career was being wasted pretending his knees were fine while struggling to run singles. He urged him to take a break and get fit. Next, bold news on screen: Hassan Ali, Naseem Shah, and Haris Rauf. Hassan Ali declared players must play first class cricket and become proper test bowlers first. हारिस रऊफ एडेड हिज विजडम. विकेट्स लेना जरूरी है लेकिन रन रेट भी स्लो करना चाहिए ताकि प्रेशर बैट्समैन पे बना रहे. Naseem Shah with a straight face criticized inconsistency and complained that players are too busy doing TV ads. On another channel, Babar Azam, serious as ever, was talking about team politics. Team divided है, PSL lobby push करती है अपने players, regional biases, favoritism, conspiracies in the same old story. Then I switched to ARY. Shahid Afridi, still looking 30 years old, was sitting with Shaheen Afridi and declaring that test and first class cricket should be the only criteria for selection and that politics must be kept away from the game. He ended with team की surgery करनी पड़ेगी. Finally, I picked up my phone and opened YouTube. Shadab Khan had become a full-time YouTuber. His thumbnail screamed real truth about Pakistan cricket captain exposed. His hot take: captain compromised है क्योंकि captain की wife किसी ex-cricketer की बेटी है और वही ex-cricketer अब coach है. He is a puppet, he screams. Then came TikTok. Mohammad Rizwan, now a full-time Maulvi, was making metaphorical reels about cricket as a modern-day crusade. Aggressive रखो गेम, हावी हो जाओ सामने वाले पे, ऊपर से आओ उन पर, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, साइड ट्रैकिंग मत करो, यही जिहाद है. Now here's my question. Did I hallucinate or did I actually see the future? Kindly help me find the truth. Very interesting email. और मैं आपको अभी से बता दूं, because most of you guys are in your 20s to 40s, तो अभी मेमोरी आपकी फ्रेश है. 15 साल बाद आज जो ये पॉटी करते फिर रहे ना दुनिया जहां में, यही एक्सपर्ट्स बैठ के टीवी पे बैठे होंगे, 15-15, 20-20 लाख रुपए पर सीजन सैलरी ले रहे होंगे और आपको बता रहे होंगे कि किस तरह खेलना चाहिए. यही अहमद शहजाद, यही कामरान अकमल. क्या हम भूल गए कि इनकी अपनी क्या परफॉर्मेंसेस थी? अल्ली वल्ली यार. तो नथिंग इज गोइंग टू चेंज भाई. जिस तरह मैं आपको कहता हूँ ना कि कराची से उम्मीदें छोड़ दो, आगे बढ़ो, इसी तरह क्रिकेट से उम्मीदें छोड़ दो, अब कोई और चीज़ देखें. अब और चीज़ कोई पनपती नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिर क्या कह रहा था मैं, डिस्ट्रैक्ट हो गया यार. मीडियोक्रिटी हमारे यहाँ हर जगह है. अब वो क्रिकेट इसलिए ज़्यादा हाईलाइट होती है क्योंकि क्रिकेट पे फोकस सबका है, बट यही मीडियोक्रिटी आपको हर जगह मिलेगी. देखिए, एक तो हर चीज़ अल्लाह पे डाल दी, अल्लाह की मर्जी, कुदरत का निज़ाम, नमाज पढ़ेंगे तो कामयाबी होगी. बिल्कुल, मैंने कब बोला कि नहीं होती, लेकिन नमाज के साथ परफॉर्मेंस भी करनी है. दुआ अल्लाह से मांगनी है कि ऊँटनी ना भागे, लेकिन ऊँटनी को रस्सी आपने ही बांधनी है. यही मिसाल दी जाती है ना. लेकिन बस वही ना, अकाउंटेबिलिटी हमने वही यार, वो ये शब्बर जैदी भाई कह रहे थे कि हमने अकाउंटेबिलिटी आपस में होना छोड़ दिया है, अल्लाह पे डाल दी अकाउंटेबिलिटी कि भाई अल्लाह हमें जज कर लेगा. भाई अल्लाह तो करेगा, भाई तेरे एक्शन से मैं इम्पैक्ट हो रहा हूँ तो इसकी अकाउंटेबिलिटी का है. तो हमने बस अल्लाह पे डाल देते हैं हर चीज़. कामयाबी भाई की अपनी परफॉर्मेंस, नाकामी अल्लाह की मर्जी. फिर उधर से हटें तो ग्रुपिंग, पॉलिटिक्स, सब अपने लिए खेलते हैं. मुझे किसी ने, somebody who's very close to cricketers, मैं बिल्कुल ना फील्ड बताऊंगा ना कुछ, जो कि बहुत क्लोजली इनके साथ काम करते हैं, ठीक है,
उन्होंने ये बताया कि नाउ दैट आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद दीज पीपल, अब समझ आती है कि ये डिजर्व करते हैं जिस तरह ये जलील होते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही हैं। यहाँ 3 बैठे होंगे ना, एक उठ के जाएगा, दोनों बैठ के उसकी बुराई करेंगे, वो आएगा, एक उठ के जाएगा, ये बैठ के उसकी बुराई करेंगे, टांग खींचेंगे। इंडिविजुअल अप्रोच जिंदगी में भी अपना ही सोचते हैं, अपने ही स्कोर की फिक्र करते हैं, अपने ही रैकेट्स की फिक्र करते हैं, और बटे में सारे, कोई यूनिफिकेशन इनमें नहीं है, कोई यूनिटी नहीं है बिल्कुल भी। लाइट बंद हो गई तो सो नो वंडर जो हमारी हालत है क्रिकेट में वो नज़र आती है, क्योंकि मैं इन लोगों के साथ काम करता हूँ। सो यस, दूसरी चीज़ ये कि मैंने अपनी वीडियो में भी कहा था जो मैंने मैच के बाद बनाई थी, देखें अब पाकिस्तान उसी तरह हो गई। आपको याद है 90s में, बिफोर 96 वर्ल्ड कप, श्रीलंका हर 3 महीने बाद पाकिस्तान आई हुई होती थी। वो मैच कोई देखता भी नहीं था, स्टेडियम खाली होते थे, कोई नहीं देखने आता था, क्योंकि वो श्रीलंका की टीम इतनी फारे थी। राणा टुंगा, गुरु सिंह बाय द वे लेंस पहन के खेलता था, बैटिंग करता था, और एक बार उसका लेंस गिर गया पिच पे, उसने ढूंढ के उठा लिया और झाड़ के फिर पहन लिया। इतना फारे, क्योंकि उस वक्त केबल नहीं थी ना, तो टीवी ही देखते थे। और मैं इतना पुराना हूं कि भैया टेस्ट मैच में 3 दिन के बाद 1 दिन रेस्ट का होता था। 6 दिन का टेस्ट होता था जिसमें खेलते 5 दिन ही थे, 1 दिन रेस्ट का होता था। चाय का ब्रेक होता था भाई, टी ब्रेक तो आई थिंक अब भी होता है टेस्ट मैच में, होता ही नहीं होता, बड़ा जमाना हो गया। लंच ब्रेक तो होता है, टी ब्रेक होता था भाई। खैर, और इतना पुराना हूं मैं, तो भाई उस जमाने में श्रीलंका आती थी, जिम्बाब्वे, इनका कोई मैच देखता नहीं था यार, कि वन साइडेड। अब पाकिस्तान दुनिया के लिए, केनिया उस जमाने की आपको याद होगा 96 वर्ल्ड कप की, जिम्बाब्वे, हम वो हो गए हैं। कोई हमारे साथ खेलना नहीं चाहता, अगर खेलते हैं बिकॉज आईसीसी की डंडा होता है, खेलना होता है, तो वो 20 ही लड़के भेजते हैं यार। ये न्यूजीलैंड जो बार बार आके गई है, इंग्लैंड बार बार आके गई है, कौन से स्टार प्लेयर उनके थे, कितने होंगे जो लोग देखते, जरा बताएं। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में भी कहा कि जो स्पोर्ट्स साइंटिस्ट होते हैं, जैसे मेरा अपना दोस्त है मोइज, न्यूयॉर्क मेट्स के लिए काम करता है, नॉट जेट्स। मैंने वीडियो में जेट्स बोल दिया था, जेट्स तो फुटबॉल टीम है, सॉरी बेसबॉल, फुटबॉल टीम है, मेट्स इज द बेसबॉल टीम। तो भाई दे वर्क ऑन द रेंज ऑफ मोशन ऑफ प्लेयर्स, कि भाई आप अगर बॉलर हो तो आपने, मतलब पिचर हो जैसे बेसबॉल में, तो कितनी पिच कर, आपका एंगल ये है, आपकी कोनी का एंगल ये आ रहा है, स्कैन में आप इस तरह करते रहोगे, अगर साल में आपने 500 मैचेस खेल लिए तो आप तो इंजर हो जाओगे, हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, तो आपने सिर्फ इतने मैच खेलने। यही चीज़ अब क्रिकेट में जब से साइंस आई है यार, आप 60-70s के मैच देखो, थक्कल बॉलिंग, थक्कल बैटिंग, रनिंग वनिंग कुछ नहीं। अब आप देखें यूसेन बोल्ट जो आपका गोल्ड मेडलिस्ट, मतलब हमारे रिसेंट टाइम्स का, और वर्ल्ड रिकॉर्ड जो 1936 ओलंपिक्स में थे, कितनी चेंजेस आई है स्पोर्ट्स साइंसेस जब से आई है। जूते अच्छे हुए हैं, अर्गोनॉमिक हुए हैं, ट्रैक अच्छे हुए हैं। जब से साइंस आई है ना स्पोर्ट्स में, कहाँ से कहाँ निकल गए। इंसान तो वही है ना, डाइट्स अच्छी हुई हैं, न्यूट्रिशन अच्छी हुई हैं, ठीक है ना, हर चीज़, वेलनेस, सारी चीज़ें आई हैं। कोल्ड शावर, दिस दैट, आइस थेरेपी, फलाना ढिमकाना, क्या कुछ नहीं करते भाई ये प्लेयर्स, एथलीट्स, ठीक है ना। परफॉर्मेंस में देखें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 1936 का जो गोल्ड मेडलिस्ट है, आज के ट्रैक में अगर भागे वही आदमी तो लास्ट भी ना आए, उस वक्त का गोल्ड मेडलिस्ट। इतनी इवॉल्व हुई है स्पोर्ट्स हर उसमें से, ठीक है। साइंस अब इसमें भी आ गई है। कोहली क्या कहता है, राजमा चावल खाऊंगा तो वो जो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में भाग के मैं कैच पकड़ रहा हूं वो नहीं पकड़ पाऊंगा, कैलकुलेट करके चल रहा है, राइट। ये सब इंडियंस के सारे जो डब्बे बने हुए ऐसे नहीं बने हुए, दे आर लुकिंग इट, वो डेटा ड्रिवन है। मुझे कौन बता रहा था कि मुंबई इंडियंस के पास, कुल्लू बता रहा था, कौन बता रहा था कि मुंबई इंडियंस के पास आई बिलीव कोई सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या है यार, फीड किया हुआ है एआई में, वो देख लेते यार। बटलर अगर है तो बटलर किस तरह आउट होता है, ये फलाना बॉलर है तो इसकी लाइन, मतलब क्या किन पिचेस पे कितना रखता है, तो उस ओ भाई वो स्टडी करके जाते हैं। कल हमारा इनसे मैच है, ये बॉलर इस तरह, इसकी स्ट्रेंथ ये, वीकनेसेस ये, बैट्समैन की स्ट्रेंथ ये, वीकनेसेस ये, यहाँ पे पढ़ के जाते हैं। आईपैड पे पढ़ रहे होते सारे प्लेयर मुंबई इंडियंस वाले, अच्छा ये है, या कोलकाता नाइट राइडर्स, वन ऑफ दीज टीम्स, ठीक है, पढ़ के जाते हैं, अगले दिन अप्लाई करते हैं। देखो ना, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, बाय द बुक चलते हैं, बाय द बुक परफॉर्म करते हैं। हमारे अल्लाह हाफिज, अल्लाह मालिक है, अल्लाह देख लेगा, फरिश्ते, हम यूं बैट मारेंगे तो फरिश्ता बॉल लेके हवा में यूं बाउंड्री के, अबे हम ख्यालों की दुनिया में रहते हैं, मौजों की दुनिया में रहते हैं।
मुआवजा हो जाए। हम क्या करते हैं, आप अपनी डिस्कशन देख लें, कोई मेरेकल हो जाए, बांग्लादेश उसको हरा ले, वहां बारिश हो जाए, फ्लोरिडा में ये हो जाए, न्यूयॉर्क में ये हो जाए, तो हम फाइनल में आ जाए। मुआवजा, हमारा हमारा जो एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ है वो मुआवजा है। कुछ हो जाए, कुछ कर लूंगा, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अबे तो जाहिर है हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, रोज कुछ ना कुछ होता है, तो ये भी हो जाएगा। हम लोग हार्ड वर्क पे बिलीव नहीं करते, साइंस पे बिलीव, मैन इज द साइंस, साइंस इज द फकिंग साइंस, यही बोलता है ना सईद अजमल, व्हाटएवर। तो हम इस तरह चल रहे हैं। तो यार अब आप देखिए क्रिकेट कितनी इवॉल्व हो गई है। अब आप, ये वही बात है यार, मैं हाशिम जो कि मेरा बेटा बगैर उसके मतलब पूरा यूट्यूब नेटफ्लिक्स, उसको पता है भाई किसके आईडी पे जाना है तो किसके एल्गोरिदम में मेरी चीजें हैं। माया बाप का खोलेगा तो ऊपर वो सारे बड़ों वाले शोज नजर आएंगे, ठीक है। दूसरे आईडी पे जाएगा बच्चे वाली पे तो उसको अपना नजर आएगा। उसका मुकाबला मैं अपने अब्बा से करा दूं, मेरे अब्बा तो बेचारे आज भी रिमोट पे स्ट्रगल करते हैं। वो मतलब वॉल्यूम एक करते हैं, ऊपर देखते हैं हाँ पहुंच गया, चलो ठीक है, अब दूसरा, मतलब इस तरह है मेरे सारे, समझ रहे ना, एज की बात है। तो हम क्रिकेट में भी यही कर रहे हैं, वो किताब की तरह पढ़ के आ रहे हैं कल का मैच, कि कल के मैच में ये होगा। हम क्या जा रहे हैं, अल्लाह तवक्कल जा रहे हैं, बावजू क्या जी, वो रिजवान ने क्या होता जी, बावजू उतरते हैं, नहीं नसीम ने कहा था कि हम जी वजू करके उतरते हैं। बस देखो वजू करके देख लें, आपके सामने रिजल्ट है। वही वाली बात है भाई, अल्लाह की मदद तभी होगी जब आपने ग्राउंड वर्क किया होगा। ग्राउंड वर्क हमारा जीरो है, तो बस फिर वही ना, किसी सोसाइटी को अगर तबाह करना हो ना, उसको इतना रिलीजियस बना दो कि वो हर चीज़ अल्लाह पे डाल दे, मौजों पे बिलीव करे, अल्लाह की मर्जी, और अपने ऊपर होने वाला अन्याय, अत्याचार, जुल्म को बोले यार ये तो अल्लाह की मर्जी है, शायद मेरे नसीब में ये था, शायद इसमें अल्लाह की कोई मसलहत हो, शायद इसमें मेरी कोई बेहतरी हो। तो आप इतना मजहबी बना दो कि वो फैक्ट्स पे ना जाए, वो डेटा पे ना जाए, वो मौजों पे चली जाए। तो हम क्रिकेट को भी मौजा लेके चलते हैं, लग गई चल गई तो शाम चांद तक, वरना शाम तक। अगर आप इंडिया से 100 मैचेस खेलो, 5 तो जीत ही जाओगे। कहीं ड्यू फैक्टर हो जाएगा, कहीं क्या कहीं क्या। वो जो वाला मैच है इंडिया पाकिस्तान, वो जो 152-0 पे, उसमें पाकिस्तान गालिबन टॉस भी जीता था, ड्यू फैक्टर भी था, 10,000 चीजें। तो लक तो चली जाती है यार। आप तो ऑस्ट्रेलिया को भी हरा ही सकते हो ना, अभी भी हम कुछ हराया है पिछले दिनों में। अगर आप 100 मैचेस खेलोगे, एक आध जीत ही जाओगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब लेकिन हमारा क्या जी, उसी मैच को पकड़ के अगले 4, अबे हम एक वर्ल्ड कप गलती से जीत गए, हमने प्राइम मिनिस्टर बना दिया भाई। हम तो एक ही जीत को लेके कहां तक लेके जा रहे होते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो पॉन्टिंग आज नाचता होगा? अबे पैट कमिंस उतरा वर्ल्ड कप जीत के, बाहर में चला गया, कोई पहचान नहीं रहा था उसको। इससे यूजुअल, हाँ उसकी जॉब है भाई, इसका जॉब ही जीतना है, जीत के आ गया, खल्ली वल्ली क्या बिग डील। हम यहाँ पे एक विन को लेके, विन या लन, 2017 हम सरफराज नहीं उतरता हमारे जहन से, वो 152 वाला मैच नहीं उतरता। अबे वहाब रियाज का वो एक स्पेल था डेविड वार्नर का, वही बेचता रहा वहाब रियाज अगले 20 साल तक। वो जो एक याद है, एक स्पेल कराया था उसने, था स्पेल मजे का, लेकिन भाई और भी तो ला ना, क्या उसी को लेके बैठे रहे? वही टिकटॉक काटते रहे क्या? टिकटॉक से याद है, साहबजादा फरहान ने 2 छक्के मारे गालिबन बुमराह को, टिकटॉक डाल रहे हैं। अबे शर्म आती है, तुम लोग मैच हारे हो, टिकटॉक डाल रहे हैं कि बुमराह को छक्का मारा मैंने, पहला पाकिस्तान। अबे भाई तुम मैच हारे हो, बात खत्म इस पे। शेमलेस एटीट्यूड है यार। वो एक और भी आपको याद होगा, गालिबन शाहीन की एक वीडियो, यूएस में जब वो मैच हारे थे, उसकी झलकियां दिख रहा था, हंस रहा था। अबे यार क्या बात है यार ये। तो क्रिकेट बहुत इवॉल्व हो गई है, साइंस आ गई है। तो वही जो मैं बात कर रहा था न्यूयॉर्क मेट्स की, तो वो बताते हैं भाई आपकी रेंज ऑफ मोशन इतनी है, आप साल में इतने ही मैचेस खेल सकते हो। तो भाई वो कहते हैं यार हमारा डेविड वार्नर, हमारा जॉस बटलर या फलाना ढिमकाना, जो भी स्टार प्लेयर आजकल चल रहे हैं, हम क्यों थक्कल पाकिस्तान टीम के साथ खिला के, अगर इसके रोस्टर में 15 ही मैचेस हैं साल के लेट से, तो हम इनके साथ खिला के क्यों जाया करें? इधर दूसरे लड़के बेचते हैं, उनका हाथ खुलेगा, हम अपना स्टार प्लेयर इंडिया के खिलाफ चलाएंगे, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बस यही 4-5 टीम है ना। तो वो बड़े प्लेयर्स उन मैचेस के लिए रखते हैं। आपने देखा होगा ना कि कोहली छोटे मैच नहीं खेलता, बचा के रखते हैं ना, कि यार खुदा ना खासा इंजरी विंजरी हो जाए, फजूल उसका वेयर एंड टेयर हो सकता है, तो बचा के रखते हैं। तो पाकिस्तान को अब इस तरह ट्रीट किया जाता है टीम को, कि भाई तो श्रीलंका 90s वाली, अर्ली 90s वाली, जो कि गली में टुक पे 2 रन वाला मैच लगा, उस पर भी आ जाती थी, इतनी फारिग थी। ज़ाहिर है मुल्क के हालात खराब थे, उन्होंने बोला चलो यार कम से कम श्रीलंका से बाहर ही तो गुजरेंगे। तो वो आ जाते थे हर 3 महीने बाद टेस्ट की सीरीज खेलने, 3 टेस्ट 5 वनडे, सारे ही पाकिस्तान जीत रहा होता था। जिम्बाब्वे आपको याद होगा। सो हम अब वो बन गए, तो हमारे साथ कोई खेलना नहीं चाहता। वो आईसीसी डंडा करती है तो वो कहते हैं चलो यार अपने बी सी टीम खिला लो, तो वही खिलाते हैं। फिर हम, हमारी कोई ग्रूमिंग नहीं है प्लेयर्स का, अब आपको सबको अच्छी तरह पता है, सारे टेपी हैं सब, 4 ओवर से ज़्यादा इनकी बॉलिंग चलती नहीं है,
टेस्ट का कोई बॉलर हमारे पास है ही नहीं। देखिए वसीम अकरम आज भी अगर हाशमी इसबगोल बेच रहा है ना, उसकी वजह ये कि वसीम अकरम के बाद कोई स्टार ही नहीं बनाया हमने। अगर आज भी वही वाले स्टार आपको टीवी पे भी दिख रहे हैं, कमेंट्री बॉक्स में भी दिख रहे हैं, पैनल शो में भी दिख रहे हैं, तो वो यही वजह है कि और कोई स्टार हमने बनाया ही नहीं। वही चलते आ रहे हैं, वही वसीम भाई आपको हर किस्म की चीज़ बेचते हुए दिख रहे हैं। यही बात है, जहां आप कुछ नहीं बदला आगे भी कुछ नहीं बदलेगा। हमारे जो सीनियर्स हैं, देखिए वो जो अब कोहली और रोहित जा रहे हैं तो मशल पकड़ा के जा रहे हैं ना, क्षमा दे के जा रहे हैं ना कि भाई अब तुमने आगे से ऐसे संभालना है। वो भी आगे से, जब सीनियर अच्छा होगा ना तो जूनियर अच्छा ही ट्रेन होगा। यहाँ पे सीनियर क्या सिखाते हैं, बाजमान नमाज पढ़नी है, अच्छा जी एंडी फ्लावर को कुरान दे दो, ये दे दो वो दे दो। अरे भाई गेम पे आओ, ठीक है अगर आपको लगता है वो जरूरी है बिल्कुल ठीक है, मगर पहले जिस चीज के लिए हायर हुए वो तो सीधी करो अपनी। दूसरी चीज क्या जी, ग्रुपिज्म सिखाते हैं, पॉलिटिक्स सिखाते हैं, ठीक है ना, और तोड़ना किस तरह है, लाइमलाइट में किस तरह रहना है। ससुर चला रहा है एक बॉलर को, एक ससुर चला रहा है एक बॉलर को, कि किसी तरह मैं भी पीसीबी में आगे पीछे, मतलब पूरा ही नहीं होता इनका यार। और ये खुद भी एक्स क्रिकेटर जो भी पैनल पे बैठे हैं, इनका अपना क्या ट्रैक रिकॉर्ड है यार, मतलब इनकी क्या ही परफॉर्मेंस है। बहुत से लोग वो भाई आफरीदी की कहते हैं 396 विकेट्स है, तो 400 मैच भी तो खेले हैं, तो 400 मैच में 396 विकेट्स नहीं होंगी तो फिर कब होंगी भाई, ये भी तो देखो। अरे आप क्या बंदा बोल रहे थे। बाकी द फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप का हमारा क्या, जिस आदमी ने हमारी देखनी है सिक्योरिटी, वो हमारे क्रिकेट भी देख रहा है। ये वही बात हो गई, जो बैंक का चौकीदार है जिसने बैंक को बचाना है कि भाई कोई दहशतगर्द ना आ जाए, कोई लूटने वाले ना आ जाए, वही कॉर्पोरेट डिसीजंस भी ले रहा है। अबे कहाँ होता है दुनिया में ऐसा कि जो बैंक का गार्ड है वो आके जो है ना स्टेक होल्डर्स को ब्रीफ भी दे रहा है, बोर्ड रूम में भी बैठ रहा है, कॉर्पोरेट डिसीजंस ले रहा है, फोरकास्टिंग। कहाँ होता है ऐसे? वहीं यहाँ पे होता है, क्योंकि उनको पूरा नहीं हो रहा, उनको टीवी चैनल भी चलाना है मोहसिन नकवी साहब को, उनको वजारत दाखिला भी देखनी है जिसके लिए सिक्योरिटी मीटिंग्स वगैरह करनी है, लेकिन साथ में उनको आईसीसी की भी मीटिंग्स करनी है। भाई क्या हमारे पास लोग कम है क्या? हमारे पास तो इतने भरे हुए हैं कि दूसरे मुल्क में भर गए हम जाके, टैंकी इतनी भर गई कि दूसरी टैंकी भी, छोटी टैंकी भी भर गई। बंदे तो बहुत है, लेकिन बस वही सब मैं अपना सब समेट के मैं ही रखूं। पावर देने को कोई तैयार नहीं है। म्यूजिकल चेयर होती रहेगी कोचेस का, आपको पता है हर 6 महीने में, जहां वो समझने लगता है, जेसन गिलेस्पी समझने लगता है कि अच्छा यार ये इस तरह चलते हैं, इस तरह चल भाई नया आ जाए, फलाना टॉम मूडी आ जाए। टॉम मूडी तो कभी भी नहीं था हमारा, कौन था, मतलब फलाना, इतने सारे होते हैं याद भी नहीं रहते। अभी वो समझने लगता है, समझने लगता है इनका फिर नया आ जाता है, फिर नया आता है, फिर नया आता है। म्यूजिकल चेयर चलती रहेगी। जो आपकी सिक्योरिटी के मामला देख रहा है, आपकी क्रिकेट भी देखेगा। यही चलता रहेगा। तो फिर इसी तरह मीडियोक्रिटी को जब तक आप प्रोमोट करेंगे, और हाँ नए टैलेंट को ज़्यादा टाइम भी नहीं देते, और नए प्लेयर को हमेशा टेस्ट करते हैं पर्थ पे। नया बैट्समैन है, चल भाई पर्थ पे तेरे आज डेब्यू है। अबे क्यों इतनी मुश्किल जगह पे डेब्यू कराओगे? ताकि के जो पुराने हैं ना, देखो ग्रुपिंग है ना यार, नया लड़का अच्छा इसको ड्रॉप करने का बन रहा है, नए नए को करना है, इसको वहाँ भी 0 पे आउट होगा, खुद ही ठंडे हो जाएंगे, लोग गालियाँ देंगे ट्विटर पे, हमारी ही सोशल मीडिया टीम्स जो हैं गालियों का वो करेगी, प्रेशर में आएगी पीसीबी, फिर हमें ले लेगी। ये सारी गेम है। और मुश्किल पिचेस पे मुश्किल टीमों के सामने डेब्यू कराना। अबे जिसने सारी जिंदगी राशिद लतीफ ग्राउंड में खेला है यूबीएल में, उसको तुम सीधा पर्थ ले जा रहे हो? आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करो ना भाई। तो 10,000 चीजें भाई, होगा कुछ भी नहीं। जिस तरह हाथ झाड़ लिए हमने कराची से, क्रिकेट से भी झाड़ लिए। एक दिन पहले ही हुआ ना मैच मेरे आने से, मैं चाहता एक दिन पहले ही फ्लाइट लेके आ सकता, खल्ली वल्ली में कौन जाके खून जलाए, मीडियोकर टीम है। दिल से ही उतर गई है भाई, दिल से ही उतर गई है। इससे बेहतर बंदा बांग्लादेश साउथ अफ्रीका का कोई मैच देख ले, चलो साउथ अफ्रीका तो अच्छी टीम है, बांग्लादेश अफगानिस्तान का मैच देख ले। अबे टाकरा तो होता है, कोई इंटेंट तो नजर आती है। अब कल यूएई से फंसा रहे थे मैच, यूएई से मैच फंसा रहे थे। ये बड़ी टीमें 5 ओवर में खत्म करती हैं। अगर बहुत एक शार्क का एक छोटी फिले से या जेलीफिश से मुकाबला हो ना, 5 मिनट में खत्म करती है। अभी क्या इंडिया ओमान का मैच होता, किसका होता, 6-7 ओवर में लपेट दिया था। वो थोड़ी लेके जाता है 18वें ओवर तक, वो कहते हैं जल्दी खत्म करो, रेस्ट लेना है। इस तरह पाकिस्तान के साथ टेस्ट मैच होते हैं तो टीमें बोलती हैं चौथे दिन खत्म करो। भाई क्यों 1.5 दिन और हम अपने प्लेयर को भगाएं सड़क पे इन बावलों के लिए? तो जल्दी जल्दी लपेटते हैं। हम वही एंड तक ले गए मैच, 18वें ओवर तक ले गए, 20-30 रन से जीते हैं। अब जब तुम्हारी गोट फंसनी ही रन रेट पे है तो 40 पे ऑल आउट करो ना उनको। नहीं है ही नहीं कुछ।
लगता ही नहीं कि कोई इंटरनेशनल, मतलब अच्छा एक ही चीज करते हैं वो भी ऐसी करते हैं। एक शादी करते हैं, देख लें कैसी करते हैं, मेरा इनबॉक्स भरा हुआ है 18,000 ईमेल से। एक हम क्रिकेट देखते हैं, ऐसी करते हैं। एक काम करते हैं वो भी नहीं करना आता। या तो ना मुल्क में भाई इतनी सारी चीजें हो रही हैं और फलाना ढिमकाना, फोकस नहीं है, बजट नहीं, सारा आईबॉल इधर, सारा स्पॉन्सरशिप इधर, सारा बजट इधर। हॉकी वाले बेचारे सूखी टांगे लेके मर गए, ठीक है, देखो इनसे हम हट नहीं रहे। हाई टाइम है, छोड़ दो क्रिकेट देखना, इनको फॉलो करना छोड़ दो, इनका स्टारडम नीचे ले आओ। नहीं चाहिए भाई, तुम लोग मीडियोकर लोगो, जाओ गली गली के टूर्नामेंट खेलो। गली के टूर्नामेंट अच्छे होते हैं। वो फेसबुक पे अक्सर मैचेस आ जाते हैं ना, तैमूर मिर्जा और फलाना, वो छक्के वक्के जो, अबे वो ज्यादा अच्छा खेलते हैं यार। टेप बॉल वाले जो मैचेस आ रहे होते हैं, क्या पेस होता है उन लड़कों का, क्या उनके छक्के होते हैं यार, वो ज्यादा एंटरटेनिंग। मैं तो वही देखता हूँ, 20-20 मिनट के मैचेस पूरे देखता हूँ मैं। ये इनको कौन देखे यार, ओवर रेटेड एज फक मैन। बंद करो, मूड खराब हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे YouTube चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।